All right. We'll start off. Before we start with the derivative section, we'll just discuss what's going wrong with the SFM paper, why everybody is panicking with the SFM paper, and especially after the November 2016 paper, what is that we need to look forward to the paper and all. So I'll try to discuss absolutely on the basis of all that I've heard from the students and interacting with at times people at the institute, uh, with my experience in my exam, and with the inter, with the final, because एक एग्जाम एक कंटेंट देखना एंड एक एग्जाम खुद से देने में बहुत डिफरेंस होता है. सो आई हैव गिवन द एग्जाम एसएफएम एंड ऑल एंड क्रैकिंग द एग्जाम्स एंड ऑल. At times I feel that if you're really prepared, if you're really doing well in if your content is ready, if you're really prepared, you will crack your exam. Contrary to what a lot of people say that बहुत हर चीज luck के ऊपर में होता है. I agree, it's not an MCQ pattern and a good chunk of your exam goes on the luck part, but luck के अलावा ना काफी सारा चीज. Otherwise you would notice that, with all due respect to everybody for whatever preparation you're doing, that is exactly my job to uplift your preparation and get you through the papers. But at the same time आप देखोगे the chunk of the people जिससे expected होता है वो exam clear करेगा, वो exam clear करता है ना in general. ये चीज़ तो है आपके दिमाग में, मतलब जिन लोगों से expected है कि हाँ इनका तो शायद clear हो जाएगा, they've been consistently performing well, उनका clear हो जाता है exam. Agreed everybody? So ऐसा नहीं है, and at the same time you should not feel that because I have not cleared once, therefore I'll not clear a second time. And for those who are giving it for the first time, don't take it lightly. Don't take it lightly. So the thing I'm trying to point out is that there are things which you can do which will assure that you are going to clear the exams. I'll start off with a few. We'll cover all these things, that क्या exam में कहाँ गलती हो रहा है, and consciously you need to make an effort that you are able to clear that exam, clear the exam in that duration of time that you have. Most of the things I'll be talking about is with respect to all your papers. The first question that I'm asking you is that अगर आपने 1 hour जो आपका 3 hours पेपर में आपने लास्ट 1 hour में जिस स्पीड में एग्जाम लिखा था, जिस पेस पे, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल था, उसी कॉन्सेंट्रेशन लेवल के साथ एंड उसी स्पीड में अगर आपने पूरा 3 घंटा का पेपर अटेम्प्ट किया होता, तो वुड यू हैव बीन एबल टू कवर द होल 100 mark पेपर और नॉट? And most of you here, almost all of you here are nodding, yes, I would have been able to clear the exam. And I'm not asking you for the SFM paper, for my paper Strategic Financial Management, I'm asking you in general. अगर आपने last 1 hour का paper, just concentration, it's not just the speed of writing, I'm asking about both the things, the concentration. And for those who are attempting it for the first time, compare it to your inter paper, because inter again, students find it very lengthy. Obviously, final level is going to take you a notch higher, but then quite a few notches higher. But इंटर पेपर में भी आप लोग को पेपर कंप्लीट करने में दिक्कत होता था, प्रॉब्लम होता था. सो माय क्वेश्चन इज कि अगर आपने 1 hour, जो लास्ट का 1 hour में जिस स्पीड में एंड जिस कॉन्सेंट्रेशन, जिस डेस्परेशन के साथ पेपर दिया था, देयर इज अ डेस्परेशन, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. सो दैट डेस्परेशन के साथ जब आपने पेपर दिया था, तो डू यू थिंक दैट 3 hours of that kind of a answer would be able to get you through the 100 mark paper or not? The answer is more or less coming yes from everybody. So that is one thing. जब मैं अपना एग्जाम दे रहा था, I'll be very honest, I'll be very honest about it. अकाउंट्स का पेपर दे रहा था तो 4 बज गए थे approximately, and I saw that I had attempted around 52 marks or something. So basically I was half an hour lagging behind. I was lagging behind by half an hour. That was the first paper, right? And मैंने practice in the sense, मैंने 3 घंटा रूम बंद करके कि एक मॉक पेपर दे के देखूं, I had never done that. That everybody has their own way of studying. I have my way of studying, you have your way of studying. जिस तरीके से आप लोग क्लास 11-12 तक पढ़ते आए हैं, CPT एंड इंटर में पढ़ते आए हैं, आप लोग उसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे. So you cannot differ from that. Like there are people I see कि कंटेंट वो स्टोरी बुक की तरह पहले पूरा बुक पढ़ेंगे, उसके बाद में कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ेंगे. I can never do that. सबका अपना तरीका होता है पढ़ने का, and I'm not going to be asking you guys to shift from that method. My way is, the first time I'll study, I'll be so deep involved, and I need the formula का derivation. I need every single ये है तो क्यों है, जो भी word लिखा है, जो भी चीज लिखा है, I have to understand because I cannot mug up. It's a big problem with me. So I cannot mug up. So what do? I have to understand the whole content. Formulas and all बैठ करके derive करा हुआ. I've been deriving all those formulas very regularly. Like there was this formula I remember, cost का एक formula था EOQ का, economic order quantity, right? That formula is 2AO by C root over. That formula comes from a simple first differentiation. तो जब 11-12 में कैलकुलस किया था तो फर्स्ट ईयर के टाइम में, सेकंड ईयर के टाइम में कैलकुलस याद था. अभी भूल गया हूं कैलकुलस. आई डोंट यूज इट ऑन अ रेगुलर बेसिस, सो आई नो जस्ट बिट्स एंड पीसेस. बट इफ यू फाइंड आउट द कॉस्ट एंड उसका डिफरेंशिएशन करोगे, जिन लोगों का क्लास 11-12 में कैलकुलस था,
डिफरेंशिएशन करके देखोगे वो ईओक्यू का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा. एंड आई रिमेंबर दैट आई हैड डिराइव दैट फॉर्मूला. आप कॉस्ट का एक इक्वेशन बना लो. मिनिमम कॉस्ट कहां होगा? जहां फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0. मिनिमम कॉस्ट will be at a point wherein the first derivative is 0. For those who can understand, those who can relate to the calculus 11, 12. Baki log, it's okay. So you know that level. So EOQ formula was not there in level in the final level, but it was there in the inter level. So I had that problem कि नहीं, I need to derive, I need to check where the formula is coming from. And CA में problem क्या हो रहा है final में? The volume is such a huge chunk to cover for so many subjects that students do not find time to get into the subject to that level. That is an unfortunate part. कि आपके पास इतना टाइम आपको नहीं मिलता दैट यू कैन डेल्व इनटू द सब्जेक्ट टू दैट एक्सटेंट. बट ट्रस्ट मी, इफ योर अंडरस्टैंडिंग इज थरो, थोड़ा ज्यादा टाइम लेकर के पहली बार कंटेंट करिए. फर्स्ट टाइम इफ यू आर स्टडिंग अ चैप्टर फॉर 6 hours, इट इज गोइंग टू टेक यू 2 hours इन द सेकंड टाइम एंड half an hour to revise on the third time. So that level of preparation is required. If you cannot give that respect to the exam will not be, you'll not be able to crack the exam until unless you're very lucky. I have seen people second attempt, third attempt देते हैं तो वो ऑफिस से खाली 1 महीना का छुट्टी लेके करते हैं. मेरा पर्सनल ओपिनियन है दैट यू नो द काइंड ऑफ वॉल्यूम दैट इट्स नॉट अबाउट द कंटेंट का डिफिकल्टी. सीए एग्जाम्स, आई डू नॉट फील सीए फाइनल इज दैट लेवल ऑफ डिफिकल्टी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. द प्रॉब्लम इज मैनेजिंग द वॉल्यूम. सबसे बड़ा प्रॉब्लम सीए फाइनल को मैनेज करना है इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेंट. सो यू हैव टू बी डिसिप्लिन. I remember May में एग्जाम था तो मार्च का एक वीक I just wasted because I was feeling very low, you know. Obviously you're at home for 3 months, 4 months. It is very annoying sitting at home. And in the accounts paper that I was mentioning, उसमें the only thing that came to my mind at 4 o'clock, I just stopped writing for 5 minutes because I kind of blacked out. Like, you know, नहीं हो रहा, अब तो होगा नहीं, 50 मार्क हुए. उसके बाद like 6 महीना और घर पे नहीं बैठ सकता. That's the only thing that's coming to my mind. I cannot sit at home for another 6 months doing again the same thing. And that is the only reason for usko taan ke paper likha and I actually completed the paper. One more thing I'll tell you, you can verify it for yourself, I'm not lying. I gave my CA final in May 2013. I took my exams in May 2013. उस पेपर में होल्डिंग कंपनी का खाली एक सम आया था. Always there's one sum on holding, there's one on your amalgamation वाला part, and one sum that came from that international holding subsidiary, and that was the one sum out of those 100 sums of holding company that I had left. So I'm telling you, कोई भी टीचर कोई भी कुछ भी बोले, एक तो आई डोंट थिंक एनी टीचर इज गोइंग टू बी कमेंटिंग कि ये चीज एग्जाम में आएगा, ये नहीं आएगा, बिकॉज नोबडी नोज हाउ द पेपर इज सेट एंड कौन किसके क्वेश्चंस किस तरीके से मिक्सअप होकर के किस तरीके से फाइनल पेपर आता है. एंड अगर आपको पता भी है तो इट इज वेरी अनएथिकल टू टेल स्टूडेंट्स दैट यू नो दिस इज गोना कम. व्हाट वी कैन टेल यू इज व्हाट इज अ हाई प्रोबेबिलिटी टू कम. You know what should come. What if I am a paper setter, what will I set? That is something that the teacher can comment. So ये selective studying वाला जो nonsense है वो तो बिल्कुल ही आप हटा दीजिए. Selective studying is not gonna work. And especially with the first paper and with the first question of that, I have learned that bit. Thankfully I did not have to relearn it, but that selective studying हटा दीजिए. 2013 का पेपर जाके देखिएगा होल्डिंग का सम, you'll find an international budgeting, international वाला होल्डिंग सब्सिडरी वाला सम. वो क्रॉस होल्डिंग वाला एक सम खाली छोड़ के गया था पूरा 100 सम्स में. सोच के देखिए एग्जाम में कितना खराब लगा होगा. I mean one sum you're leaving, and I did not leave. Tax में I remember DT में I left a one penalty वाला chunk because that year I think 271 A, B or A, C or some section had का amendment आया था, which was like super duper important. So हाँ उस पार्ट में वो पेनल्टी बाकी खाली वो करके बाकी छोड़ करके गया था because it was not possible to cover. So of course you might not be able to cover the whole 90%, 100% chunk. It's possible. But selective studying जानबूझ करके तो मत करिएगा. It is not going to help you. That's not going to help you. दूसरा चीज पेपर में I have talked to so many students, so many people turning up, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, this is the issue I'm having, this I'm not being able to clear. When I ask them कि कितना अटेम्प्ट किए, approximately 70, 80, 85 मैक्सिमम उनका अटेम्प्ट आता है. 85 का जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो आपको भी पता है कि आपने 85 एक्यूरेटली अटेम्प्ट नहीं किया है. There will be 5-10 marks, or I'm just assuming a 10 or a 15 mark that you've incorrectly attempted. तो आपने अटेम्प्ट ऑन एन एवरेज 70-75 किया है करेक्टली, जिसमें आपको मार्क्स मिलना चाहिए. 70-75 का अटेम्प्ट में आपको भी पता है कि मिस्टेक्स होंगे एंड कुछ स्टेप मार्किंग मिलेगा, कहीं कुछ स्टेप मार्किंग शायद नहीं मिलेगा. And at the same time, you would have attempted a couple of theory questions and all, wherein you cannot expect a 5 out of 5 because it's not an MCQ. So you will have certain distractions, you'll have certain marks cut down. So आप 70-75 attempt कर रहे हो, वो 70 में से 10-15 मार्क्स तो आपका ऐसे भी जाना ही चाहिए. आप खुद अग्री करोगे कि आपने जो भी सम्स लिखे होंगे वो 100% accurate तो नहीं किया होगा. Out of 80-85 that you attempted, 10-15 you have made a mistake. You just attempted for the sake of it, right? You did not know the sum probably 10 or 15 marks. So 70-75 marks you're attempting, out of which you know that 10-15 marks तो ऐसे भी जाने चाहिए.
तो आपका 55-60 लेवल तो ऐसे ही आ गया, मतलब आपने स्कोप फॉर एरर कितना छोड़ा है, 15 का. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट रूम ऑफ एरर यू आर लीविंग. इफ आई अटेम्प्ट 100 मार्क पेपर, उसमें से मेरे को 15 मार्क्स का कुछ नहीं आता था, 85, उसमें से 15 मार्क मेरा कट जाना चाहिए 70. अब 70 और 40 का गैप देखिए कि एग्जामिनर को अगर मेरे को फेल करना है तो वो 70 से लेकर के उसको 30 मार्क्स रिड्यूस करना होगा, देन ही विल बी एबल टू फेल मी. You're understanding? So that is one thing, that your attempt has to be 100, and you yourself are telling me that अगर 100 मार्क का पेपर लास्ट के 1 आवर में जो अटेम्प्ट किया है वैसा अगर पूरा 3 घंटा अटेम्प्ट करेंगे तो पेपर क्लियर होगा. So again what I used to have in my mind is 16.5 marks in half an hour. Every half an hour is a 17 mark. You divide your 100 mark divide by 6, it's gonna give you a 16.5 marks, right? So every time 17 marks, and मैं थोड़ा सेफ साइड के लिए 20 मार्क्स अज्यूम करके चलता था. अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करते हैं जहां पर आपके पास 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, दैट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी लेंथियर बिकॉज 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं ना उसमें, सो दैट बिकम्स लेंथियर. तो फर्स्ट 20 मार्क्स अगर फर्स्ट हाफ एन आवर में अटेम्प्ट करोगे 40 मिनट्स लगेगा ही लगेगा. इन एनी पेपर आई एम टॉकिंग इन अ वेरी जनरल मैनर. सो इट इज गोइंग टू टेक यू दैट 40 मिनट्स फॉर द फर्स्ट 20 मार्क्स. सो आइदर फर्स्ट क्वेश्चन को बाद में अटेम्प्ट करिए, और इफ यू आर अटेम्प्टिंग बी प्रिपेयर्ड कि आपको बाकी जगह पर 20 मार्क्स इन हाफ एन आवर क्लियर करना है, तब जाकर के वो स्पीड बढ़ेगा. सो यू कैन नॉट बैंक ऑन योर लास्ट 1 आवर का स्पीड. यू हैव टू कीप अ टैब एवरी आधे घंटे में मेरा 20 मार्क खत्म हो रहा है कि नहीं, और उसमें 2-3 मार्क का बैकलॉग बचेगा, उसके लिए एक हाफ एन आवर एक्स्ट्रा है. सो 20 मार्क्स के लिए यू नीड 5 हाफ एन आवर का स्लॉट्स, 2.5 घंटे, आधा घंटा का अपने बफर रखे एंड में. सो दैट इज वन थिंग, यू नीड टू टाइम योर पेपर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज वन पार्ट. सिलेक्टिव स्टडिंग यू कैन नॉट डू, डोंट इवन डेयर टू डू दैट. तीसरा, don't try to be over smart because a lot of people I see, again I've seen my cousins and all doing this. You know, एक हफ्ते का छुट्टी ले लेंगे, बाहर घूम करके आ जाएंगे because the whole family is going for a trip just 20 days before the exam because they've attempted it 3 or 4 times. You have to complete it and get done with it so that you can move on with your life. When you're talking about different exams, CFA है, FRM है, CAT का exams देते हैं लोग MBA admissions के लिए, people can prepare these exams along with the job. But CA, you understand the content is as such that you cannot prepare it along with the job. So give it that respect, give it that whatever months are required before the exam, and give that honesty. दूसरा चीज, अगेन आप 40 को टारगेट नहीं कर सकते, आपको 50 के ऊपर, आपका टारगेट 50 नहीं होना चाहिए. माई टारगेट यूज्ड टू बी 70, 80 प्लस, एटलीस्ट इन द प्रैक्टिकल पेपर्स की 80 प्लस लाना है, बाकी में 60 प्लस लेके आना है. आप अगर 40 टारगेट करेंगे तो 30 आएगा. आपको 100 का अटेम्प्ट टारगेट करना है, 90 करेक्टली अटेम्प्ट टारगेट करना है और 70 के ऊपर लाना है. वो टारगेट करेंगे तो 60 के ऊपर आएगा, 55 के ऊपर आएगा. सो इफ योर टारगेट इज 40 और 50, हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू गेट अ 60? आप टारगेट इधर सेट किए तो टारगेट से तो कम ही अचीव करते हैं हमेशा. Whatever benchmark you keep, you always achieve a little less than that in general. So if I see people, नहीं आप 40 का टारगेट रखना है, 50 मार्क तो लाना है, doesn't work. एवरेज मार्किंग करते हैं लोग, बोलते हैं कि पेपर एवरेज मार्किंग किया. भैया देखिए कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, वो टिक 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 किया है और हर जगह हर एक क्वेश्चन में आधा मार्क्स दिया है, आधा इन द सेंस हाफ ऑफ द क्वेश्चन का आंसर. तो अगर आप सोचेंगे कि मैं 50 मार्क का पेपर बहुत अच्छे से लिख के आ जाऊंगा एंड उसमें 50 on 50 दे देगा, दैट्स अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ अटेम्प्टिंग अकॉर्डिंग टू मी. दैट इज नॉट गोइंग टू गेट यू थ्रू. Right, so you need to leave that more margin of error by attempting a good chunk of the paper. That is very important. Now the दूसरा चीज जो सबसे important चीज बोलते हैं कि वो 1.5 दिन में कैसे रिवाइज करें, because the content is very huge. I agree, do not deny that. I don't see CA final being a very difficult paper, but CA final का 1.5 दिन में, वो एग्जाम के पहले का 1.5 दिन में रिवाइज करना is one heck of a job. And in order to do that, you need to prepare starting से अपना नोट्स वगैरह जैसे प्रिपेयर करना है वो उसी हिसाब से करना होगा. कोई भी टीचर कितना भी फॉर्मूला शीट्स दे दे, कोई भी माइंड मैप दे दे, वो कोई काम नहीं आने वाला है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग टू बी जो आप अपने हैंडराइटिंग में खुद से क्रिएट कर रहे हो, बिकॉज उसको पढ़ना, उसको समझना इज वेरी इजी. या इफ यू आर यूजिंग सम रेफरेंस मटेरियल, उसमें अपना नोट्स ऐड करिए, मतलब यू नो पुट दोज एरोज एंड ऑल. लाइक आई विल टेल यू DT, आई रिमेंबर इन माई DT का डायरेक्ट टैक्स का मॉड्यूल, आई हैड द इंडेक्स इन 4-5 पेजेस, मतलब 4 पेज का तो इंडेक्स ही था जहां पे एक सेक्शन एंड वो क्या था वो लिखा हुआ था, एंड मैंने पूरा बुक का समरी वो 4 पेज का इंडेक्स में भर दिया था. How do you expect me to revise 7-8 books of a direct tax in 1.5 days? It's not humanly possible. And वो 7th या 8th पेपर आएगा, उसके पहले 12 दिन में I'm already mad doing 6 subjects. उसके बाद मैं कहाँ से DT पढ़ा हुआ 2 महीना पहले का याद रहने वाला है मेरे को, बिकॉज 15 दिन का एग्जाम है, उसके पहले 10 दिन आप अकाउंट्स कर रहे होंगे, तो 1 मंथ का गैप तो ऑटोमेटिकली हो गया DT के लिए, एंड वो DT को रिवाइज करने में ही 15 दिन लगा होगा, तो 1.5 महीना पहले किया होगा कैपिटल बजटिंग. आई नो इट साउंड्स लाइक what crazy stuff are we doing over here, but then just try to think how it is not humanly possible to remember so much. So what you need to do is you have to revise in those 1.5 days. Whatever you have revised in 1.5 days, you will remember it for the exam. जो चीज आपने 1.5 दिन के लिए नहीं प्रिपेयर कर रखा है, जो आप 1.5 दिन में रिवाइज नहीं कर पाओगे, वो आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे.
other than something like accounts, SFM, cost में still works, but बाकी subjects में you'll not be able to write what you're not revising in 1.5 days time period. So you have to focus on how you do that. So मेरा जो भी, I just don't want to recommend or name books and whatever, but जो भी मैंने लॉ का बुक पढ़ा था उसमें I knew margins पूरे भरे हुए थे. जब एग्जाम देने का टाइम आया था, एग्जाम के पहले दिन I was not reading the book, just margin थोड़ा बहुत अंडरलाइन किया हुआ था 2-3 वर्ड्स, लाइक पूरा इतना बड़ा पेज उसमें 4 वर्ड अंडरलाइन है, साइड में कुछ फ्लो चार्ट वगैरह कुछ अपने हैंड राइटिंग में बनाया हुआ है क्रिस क्रॉस करके विद इन द बुक इटसेल्फ. So flipping pages becomes easier. DT में I was just reading the index pages of the material. वो इंडेक्स पेज पढ़ने में को 2 घंटा लगा था, 4-4 पेज, बट एवरीथिंग इज कंसोलिडेटेड इन सच अ मैनर. अमेंडमेंट मैट आता था, वो आता है ना, वो एक समरी मैट, वो समरी मैट पढ़ना ही नहीं पड़ता है, अपना खुद का समरी मैट बनाया हुआ है, मतलब वही मैट को समराइज किया हुआ है. इट इज ऑलवेज ईजियर अपने हिसाब से लिखा हुआ चीज को पढ़ने को. सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नीड टू डू सो दैट यू आर एबल टू प्रिपेयर इन अ डे एंड अ हाफ. लाइक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आई नो, एक डिटेल्ड रहता था, फिर एक फ्लो चार्ट रहता था, वो डिटेल में कुछ भी एक्स्ट्रा होता था वो फ्लो चार्ट में एडेड रहता था मेरा. With respect to ISKA, the tip I got, I'll just pass it on to you. So my friend gave me this tip, a senior of mine. So she told me that ISKA पढ़ने के लिए ना, इसका थोड़ा सा irritating हो जाएगा content, and उसका retention is a big problem. ISKA का सबसे बड़ा problem है उसका retention. So ISKA के लिए she used to tell me कि don't do ISKA, like एक चैप्टर को बहुत अच्छे से 8-10 घंटे में प्रिपेयर मत करो. एक चैप्टर को रफली 3 घंटा दे करके ही प्रिपेयर करो, लेकिन वो 3 घंटा का प्रिपरेशन शुड बी 3 times. So I need to study ISKA today, then again after a month I need to study ISKA, then again after a month I need to study ISKA, only then the retention happens. And then also you cannot mug up words, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ISKA में भी लाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली बोल क्या रहा है. ग्रीक तो है नहीं, कुछ तो कंटेंट होगा, कुछ तो लॉजिक होगा. आज it's information systems in a auditing environment. So try to relate with your experiences and try to remember ISKA. That becomes very important. With respect to accounting, SFM in particular and cost to an extent, 1.5 days का रिविजन का एकदम सिंपल तरीका है. आई रिमेंबर होल्डिंग के जितने भी सम्स थे, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के जितने भी सम्स थे, दैट इज योर अमालगमेशन वाला पार्ट, मर्जर्स इज इन एसएफएम, एंड जितने भी टॉपिक्स के जो भी सम्स थे, म्यूचुअल फंड बोले या कोई भी छोटा बड़ा टॉपिक कुछ भी हुआ, हर एक टॉपिक इफ यू रिमेंबर देयर इज अ बिग सम गिवन, या तो बैलेंस शीट वगैरह कुछ डेटा दिया हुआ रहेगा, एंड उसके बाद में ट्रीटमेंट 1, 2, 3, 4 वो 3-4 बुलेट्स दिए हुए रहते हैं जिसके ऊपर में आपको पूरा सम करना होता है. वो जितने भी बुलेट्स रहते हैं ना, आई हैड जस्ट अ लाइन रिटन बिसाइड द बुलेट कि अच्छा आपका ट्रीटमेंट बोल रहा है कि वो डिविडेंड पे किया है होल्डिंग कंपनी ने ऐसे, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, एड टू दिस, लेस टू दिस. सो इन जस्ट अ वेरी स्मॉल सेंटेंस आई एम राइटिंग दैट. लाइक एसएफएम में आई विल टीच यू राइट नाउ, लाइक देयर इज दिस क्वेश्चन इन द प्रैक्टिस मैनुअल कि उसमें रिस्क इंडेक्स करके एक वर्ड लिखा हुआ है. द ओनली कैच ऑफ द क्वेश्चन इज कि रिस्क इंडेक्स को अगर आप बीटा ले लेंगे तो आपका सम आराम से हो जाएगा. तो सम के बाजू में खाली इतना लिखा हुआ है, रिस्क इंडेक्स इज इक्वल टू बीटा यूज सीएपीएम, रिस्क इंडेक्स इक्वल्स टू बीटा यूज सीएपीएम. उतना 4 वर्ड पढ़ते ही मेरा एक सम रिवाइज हो चुका. दैट इज हाउ यू आर सपोज टू बी रिवाइजिंग. इफ यू वांट टू रिवाइज ऑल द हंड्रेड्स ऑफ सम्स दैट यू हैव in your content, how else do you revise? You need that one liner beside every question. You cannot practice 10 questions or 20 questions or 100 questions before the exam. तो अगर आपको 1.5 दिन में अकाउंट्स एंड एसएफएम प्रिपेयर करना है, that is what my recommendation would be. In that way you will be able to cover the whole of SFM in a day and a half's time period. In that manner you'll be able to cover the whole of SFM in 1.5 days time period when you have that written beside the question. तो उससे आप सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर पाओगे, वरना आप सारे क्वेश्चंस रिवाइज नहीं कर पाओगे. एंड क्वेश्चंस रिवाइज करना ही पड़ेगा बिकॉज यू डोंट नो व्हाट विल कम फ्रॉम वेयर. इन माय टर्म आई रिमेंबर आरटीपी से लॉ में ज्यादा आया था. मॉक पेपर जो इंस्टीट्यूट का होता है, आई होप आई गेस यू गाइज नो अबाउट इट, देयर आर 2 मॉक पेपर्स गिवन, उससे अकाउंट्स में 2-3 क्वेश्चंस डिट्टो छापा हुआ आया था. कहीं पूरा कॉस्ट पेपर में आई रिमेंबर प्रैक्टिस मैनुअल वाज वेरी लाइक 40-50% वाज फ्रॉम प्रैक्टिस मैनुअल. दिस टाइम ऑल्सो आई हैव नॉट चेक द कॉस्ट पेपर दिस टाइम, सो आई हैव टू लुक दैट अप. बट दैट इज, सो यू कैन से ना, रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं. इंस्टीट्यूट का मटेरियल अलग है, प्रैक्टिस मैनुअल अलग है, आरटीपी अलग है, मॉक पेपर्स अलग है, सारा चीज करना भी पॉसिबल नहीं होता है. बट इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू गिव यू अराउंड 70-80% क्वेश्चंस फ्रॉम इट्स रिसोर्सेज ओनली. आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, 70-80% पेपर कम से कम आपका वही प्रैक्टिस मैनुअल, इंस्टीट्यूट मटेरियल, आरटीपी एंड मॉक से आ रहा है. तो सोच के देखो, एक प्रोफेशनल एग्जाम विच इज नॉट इवन अनसीन, इट इज नॉट इवन लाइक अ वेरी प्रैक्टिकल आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस कमिंग इन. आई विल कम टू द एसएफएम बिट. But in general, if you see the paper, the content is coming from the institute's resources only. You're understanding what I'm trying to communicate. So, and you know, I tried interacting with a few people in the institute and all, and they told me कि यार, मतलब, I don't know how, I am not validating or I have the utmost respect for the institute, so I don't want to be
get into any kind of a scene over here. But in general उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसा बात नहीं है कि इंस्टीट्यूट लोगों को फेल करना चाहता है. It's not like that. Students at times have that misconception. वो बोलते हैं कि कई बार हम लोग को स्केलिंग अप भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है. Like you'll have to understand there are people who are putting in papers in such a manner कि उनका ग्रामर देख करके आप पढ़ोगे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या पढ़ रहा है. You're understanding the English, the way it is written, audit के answers and all, you'll not be able to understand what the student is trying to explain. The student might know the thing, he's trying to write it, but the English is in such a manner that you're not able to understand. And you understand the volume of the syllabus is this way. And there are people who are very underprepared. And they're not preparing in a very good strategy. मगिंग अप ना स्टेप 1 में ये कर लो, फिर स्टेप 2 में ये कर लो, फिर स्टेप 3 में ये कर लो, ऐसे करके अगर आप एसएफएम करने वाले तो एसएफएम आई डोंट फाइंड इट क्लिकिंग, आई डोंट फाइंड इट वर्किंग आउट, बिकॉज क्वेश्चंस कुड बी एनी टाइप का ना. अब स्टेप 1 स्टेप 2 करके 100 क्वेश्चन एक चैप्टर का कैसे याद कर सकते हैं, सोच के देखिए. इफ यू आर प्लानिंग टू अटेम्प्ट द पेपर कि स्टेप 1 इज दिस सिचुएशन में ऐसा स्टेप 1 करना है, स्टेप 2 करना है, स्टेप 3 करना है, स्टेप 4 करना है, आई डोंट सी दैट वर्किंग. यू हैव टू गेट डाउन टू द बेसिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द आइडिया. एज समवन वाज आस्किंग कि फॉर्मूलाज याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है, फॉर्मूलाज याद करने में इश्यूज हो रहा है. सो इफ आई एक्सप्लेन यू द फॉर्मूलाज, इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू द फॉर्मूलाज, ऑब्वियसली इट बिकम्स ईजियर टू रिटेन दोज फॉर्मूलाज. दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि फॉर्मूला शीट्स खुद के बनाई है, एक जगह मार्केट प्राइस को एमपी लिखेंगे मर्जर्स में, जब वही चीज डिविडेंड का चैप्टर करेंगे तो P0 लिखेंगे, और वही तीसरा चैप्टर करेंगे तो जाकर के उसको कुछ और नोटेशन देंगे. तो एक चीज का 3 नोटेशन करेंगे तो ऐसे भी याद नहीं होने वाला फॉर्मूला, वो तो होगा ही नहीं. So when you are making your own formula sheets in your way, you know, if I find P0 easier, you might find MP easier. I'm not saying that. आपने इंटर में MP करके मार्केट प्राइस याद रखा है, मेरे लिए हमेशा P0 वर्क्स इजीली. सो इफ यू आर गोइंग टू कीप एक ही चीज का 3 नोटेशन, तो आप तो अपना काम ट्रिपल कर रहे हैं, फिर आप इंस्टीट्यूट को या टीचर को या किसी भी चीज को ब्लेम नहीं कर सकते. सो फर्स्ट थिंग इज सीए बनना है, वो तो ऑब्वियस सा बात है, बनेंगे. तो उसके लिए इंस्टीट्यूट को ब्लेम करना छोड़ दीजिए और क्रिप करना छोड़ दीजिए कि इंस्टीट्यूट पास नहीं करता है, ग्रेडिंग करता है, अप स्केल डाउन स्केल जो भी करता है, बिकॉज दैट्स नॉट इन आवर हैंड. व्हाट्स इन आवर हैंड इज व्हाट वी कैन डू. सो इट जस्ट डिसिपेट्स योर एनर्जी, डज नॉट मेक सेंस. सो लेट्स जस्ट लीव इंस्टीट्यूट इज डूइंग देयर जॉब, लेट देम डू इट. वी नीड टू डू आवर जॉब. उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसके बारे में माथा लगाइए मत, वो क्रिप करिए मत कि यार इंस्टीट्यूट ये करता है, लक नहीं है, वो नहीं है. 100 मार्क का पेपर दीजिए, 90 मार्क ढंग से अटेम्प्ट करिए, 100 मार्क अटेम्प्ट करिए, उसमें 90 मार्क ठीक से करने का कोशिश करिए, 85 मार्क्स, एंड उसमें ऐसा करिए कि 70 के नीचे तो दे ही नहीं पाए, तो 50 के नीचे जाएगा नहीं. यू डू योर एंड, देन यू सी योर पेपर्स आर गोना वर्क. इट्स वेरी सिंपल. यू डू योर बिट ऑफ द थिंग एंड योर पेपर विल वर्क आउट. सो फॉर्मूला के लिए मेक योर ओन फॉर्मूला शीट्स, कीप द सेम नोटेशंस ऑल थ्रू आउट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फॉर्मूला शीट्स अपने हैंडराइटिंग में बनाना है, उसको यूज करना इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम के पहले जो हाफ एन आवर वो एग्जाम हॉल के बाहर जो वेट कर रहे होते हैं ना, उसमें फॉर्मूला शीट ही काम आता है. दैट इज व्हाट यू कैन रिवाइज. So formula sheets are a very important thing. So yes, definitely do that. दूसरा चीज formulas mug up मत करिए, थोड़ा सा समझने का कोशिश करिए. Like in the sense that you know if you have a formula, at least try to understand why is this a plus and why is this a minus. आज एग्जाम में अगर कंफ्यूजन होता है कि ये फॉर्मूला में ये प्लस था कि माइनस था, ये न्यूमरेटर में था कि डिनोमिनेटर में था, एटलीस्ट देखो तो सही कि इसके बढ़ने से दिस थिंग शुड राइज और नॉट. अगर इसके बढ़ने से बढ़ेगा, लाइक लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से P0 इज इक्वल टू D1 by RE minus G. अगर ग्रोथ बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ना चाहिए ना. अभी RE माइनस जी है कि प्लस जी है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो चेक करो कौन से केस में ग्रोथ बढ़ने से P बढ़ेगा, वो वाला केस शुड बी द राइट वन. उतना तो लॉजिक लगा सकते हैं. ये फाइनल बनने वाले हो, उसके बाद जॉब पे जाने वाले हो, इतना लॉजिक तो लगाना बनता है, राइट? यू अंडरस्टैंडिंग? आई जस्ट रीअरेंज दिस फॉर्मूला एंड योर रिक्वायर्ड रिटर्न इज इक्वल टू D1 by P0 plus G. That is the dividend part of the return, the dividend yield part and the growth part. Now, I do this in every single class that I've taken. I ask students, what is the difference between required return, expected return, actual return, cost of equity, return on equity, and there will be a couple of more. So, उसके बताइए इनका differences. Dividend policy में करते हैं, security analysis में करते हैं, portfolio वाले chapter में करते हैं. And if you cannot say the differences between these, then you don't have the right to blame the institute. If your concepts are not clear, फिर मत बोलिए कि इतना formula से याद नहीं हो रहा, तो formula समझेंगे तब याद होगा ना. I'm not trying to put a blame on you. I'm not trying to blame you. I'm trying to make you guys more receptive. कि जो तरीके से पढ़ रहे हैं वो तरीके से पढ़ने से एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है, तो we need to think of a better method of studying, which is understanding and studying things, especially with respect to the SFM and also with the cost paper. क्योंकि कॉस्ट में सम्स आपका SFM से भी ज्यादा नया टाइप का सम्स कॉस्ट में आता है, बट कॉस्ट थोड़ा सा वो दुकानदारी वाला लॉजिक हो जाता है ना, तो अपने लिए वर्क कर जाता है. वी आर एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन.
because you have to think like a shopkeeper for cost. That's how I used to look at the cost paper. दुकानदार वाला बिहेवियर करेंगे तो कॉस्ट का पेपर नया सम्स हो जाता है, प्राइसिंग वाइसिंग सारा चीज, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, योर अंडरस्टैंडिंग नीड्स टू इंप्रूव ऑन ऑल दीज ग्राउंड्स. इंटरेस्ट का मतलब कूपन का डिफरेंस, YTM, IRR, BEY, बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड, उनका डिफरेंसेस सोचिए. फॉरवर्ड रेट, स्पॉट रेट, पार रेट, तीन और ऐड कर देता हूं. Right, so what is the difference between these terms? You have to be very clear ना with these things. उसके बिना ये सब practical papers फिर याद नहीं रहेगा. If you're mugging up, you're not going to be remembering these kind of things in the exam. How to answer the format of the question? See, my handwriting has been very bad. So what I used to do was I used to spread it out. As in थोड़ा बड़ा बड़ा, थोड़ा ज़्यादा space, ताकि अगर handwriting भी खराब है तो भी neat होता था मेरा paper. My handwriting is not very good. I think ये तो फिर भी बहुत अच्छा लिखा है अभी. You know, after क्योंकि बोर्ड पे थोड़ा प्रैक्टिस के बाद में इट्स गॉटन क्वाइट बेटर. इवन इफ यू नॉट लाइकिंग इट, इट्स क्वाइट बेटर, आई एम टेलिंग यू. इट्स वेरी नाइस. सो वट एवर इट इज, बट आंसर का फॉर्मेट वैसा कुछ नहीं है. आप बुक में अगर वर्किंग नोट 1 2 3 पहले लिखा हुआ है फिर सम किया हुआ है, एंड आपको लगता है कि सम पहले करना, नहीं, बुक में सम पहले होता है फिर वर्किंग नोट 1 2 3 होता है. डजंट वर्क विथ मी. आई डोंट नो हाउ मच स्पेस आई एम गोना टेक. आई विल डू वर्किंग नोट 1 2 3 इन द एग्जाम पहले. इट्स फाइन. द ओनली थिंग आई कैन डू इज, मैं जो भी चीज लिख रहा हूं कि कैलकुलेशन ऑफ दिस, उसको अंडरलाइन, समथिंग उसको अंडरलाइन, और उसके बाद में ना 3 लाइन छोड़ देता था. स्पेस का कंजूसी मत करिए. यू अंडरस्टैंडिंग. तो एग्जामिनर को ना देखो, एग्जामिनर जो पढ़ रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप 2 एक्स्ट्रा शीट ले रहे कि नहीं. उसको खाली इतना है, जस्ट मेक द वर्क ऑफ द एग्जामिनर इजी. कि उसको देखते, अच्छा ये यहाँ पे ये वर्किंग नोट है, यहाँ 3 लाइन छोड़ के ये वर्किंग नोट है, तो उसको तुरंत दिखते ही समझ में, अच्छा यहाँ पे ये किया है, इसका ये आंसर है, छोड़ना, अंदर कौन देखेगा, टिक मारो, आगे बढ़ो. यू अंडरस्टैंडिंग. सो यू हैव अ फुल वर्किंग नोट, यू डन 5-7 लाइन्स, ट्राई टू पुट द आंसर को सर्कल ही कर दो. बहुत ही हड़बड़ी में होता है, इसका आंसर निकला, सर्कल कर दिया हम तो. सो रूलर का टाइम नहीं है. 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना ज्यादा जरूरी है. नीटनेस के लिए 2 मार्क जाएगा. 15 मार्क का सम अटेम्प्ट करना इज मोर इंपॉर्टेंट. Of course, if you have the time, you do the beautification part, but I personally don't understand that. And I want to make my content speak. So I used to put in a lot of things. So if I have to write so many things, and it's not possible to change a blue color pen, a black color pen and all that. हाँ, blue color pen, underline, एक line छोड़ा, वो pen से underline, no pencil and all. And उसके बाद में I'm writing the answer. It needs to be neat and legible. सोचो ना, CA फाइनल का पेपर के लिए आपको लगता है पेपर पेन पेंसिल के लिए कोई कुछ बोलने वाला है? It just needs to be एग्जामिनर को पढ़ते ही स्ट्राइक करना चाहिए क्या दे रहे हो आप. उसका जितना काम इजी करोगे ना, वो उतना शांति से अच्छा से एग्जाम देगा. उसको इरिटेट कर दोगे अगर कि उसको एग्जाम पेपर पढ़ने में उसको इरिटेशन हो, ही टेक्स मोर टाइम, वो अपना फ्रस्ट्रेशन आपका पेपर पे निकाल देगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो इट नीड्स टू बी नीट एंड लेजिबल. कोई सेट फॉर्मेट नहीं है कि इसी फॉर्मेट में देना पड़ेगा. कोई सेट फॉर्मेट नहीं है. देयर आर प्लेसेस, एटलीस्ट इन SFM पेपर, आई रिमेंबर, मेरे को अगर कोई चीज बनाना होता था, आई वुड मेक अ प्रॉपर टाइमलाइन. सो आपका ये पेमेंट +7% -L +7 -L, यहीं पे एरो दे करके, एंड आई विल सॉल्व द सम. इंस्टेड ऑफ नॉट सॉल्विंग द सम, इंस्टेड ऑफ नॉट बीइंग एबल टू सॉल्व द सम, मैं मतलब टाइमलाइन के हिसाब से कुछ दिखा करके अगर मैं उसका पूरा का पूरा वैल्यूएशन दिखा सकूं, व्हाई नॉट. D1 D2 D3 D4 लिखा, मल्टी स्टेज DDM फॉर्मूला, एंड उसके बाद में आई जस्ट डू द सम वेरी क्विकली टाइमलाइन बना करके. तो टाइमलाइन में वैल्यूज प्रेजेंट कर दिया. तो ऐसा कुछ नहीं है, एग्जामिनर क्यों काटेगा. आप स्वैप को अगर दिखा दोगे टाइमलाइन पर, वो आपका, व्हाई इज इट रॉन्ग, इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स योर वे ऑफ प्रेजेंटिंग थिंग्स. एज लॉन्ग एज यू गेट द राइट आंसर, एज लॉन्ग एज यू आर प्रेजेंटिंग द राइट स्टफ. हड़बड़ी है तो क्वेश्चन नहीं करने से अच्छा है कि आप अपना शॉर्टकट तरीके से प्रेजेंट करके पेपर खत्म करें. यू अंडरस्टैंडिंग. सो द इंपॉर्टेंट थिंग्स शुड बी देयर. सो योर प्रेजेंटेशन फॉर्मेट, देयर इज नो सेट फॉर्मेट, because every teacher will teach you in a different way of format. The practice manual will tell you something else. The exam paper का जो solution आएगा वो उसके हिसाब से आएगा. practice manual रटा मार सकते हैं क्या घर पे बैठ के? Institute material, practice material, RTP, mock. If you can mug up all their methods and their way of presenting, then go ahead do that. It's not possible. So अपना दिमाग लगाइए, अपना लॉजिक के हिसाब से अपना पूरा का पूरा चीज स्टेट करिए. And it's important that your English is okay. We don't need a very high level of vocabulary. बट इज और एज में अगर गड़बड़ करोगे तो सामने वाले का पूरा कम्युनिकेशन गलत हो जाएगा. आई हैव सीन पीपल विथ यू नो ऑडिट पेपर्स एंड ऑल, इस तरीके का आंसर्स लिख रहे हैं व्हेन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर राइटिंग. सो दैट कैन नॉट वर्क. आई जस्ट क्विकली गो अहेड. आउट ऑफ सिलेबस न्यू क्वेश्चंस. इफ यू रिमेंबर, डेरिवेटिव्स का वी हैड अनदर क्लास लास्ट ईयर, आई थिंक 2015 का वो क्लास था, एंड दैट्स देयर ऑन यूट्यूब एज वेल. एंड इन दैट क्लास ऑल्सो आई हैड मेंशन्ड कि फॉरेक्स वाला पार्ट इज बिकमिंग मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट विद द इंस्टीट्यूट. When I teach derivatives,
I teach derivatives with the intention कि मेरा आधा forex खत्म हो गया है, because forex is all about forward futures and options and swaps. So if you can understand derivatives well, if you can apply it to forex, your forex is done. And forex is becoming more important. There is no, it's not like finance में देखो amendments तो कुछ ला नहीं सकते ना, मतलब it's not a law that you can amend. What you can do in finance is get new kind of questions. And new kind of questions कहाँ से आएगा? Generally foreign authors वगैरह का question लेकर के we try to put in new things extra, like जो swap points का अभी जो question आया आपका 2016 November paper में, right? So when you're looking at those papers, if your concepts are thorough, if your understanding is a little wider, it'll work. And forex is an important part. I told you then, I'm telling you now. क्योंकि आज मेरे को अगर कोई पेपर सेट करने बोलेगा तो आज मेरे को समझ में आएगा ना कि ये वाला चीज इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज स्टूडेंट का आगे काम में आएगा. दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी टेस्टेड. So your questions, out of syllabus question मत बोलिए, because ये school exam नहीं है, it's a professional exam. So don't say that there are out of syllabus questions, right? So you'll have to be prepared. You can't crib. ठीक है, 10-12 मार्क बाहर से आएगा तो आप 90 तो करिए. 10-12 मार्क अगर बाहर से आ भी रहे तो you concentrate on the 90 ना. Why do you have to concentrate on the 10? And exact book का questions नहीं आएगा. Please don't stop expecting that. आना ही नहीं चाहिए. मेरे हिसाब से जितना देता उतना भी नहीं आना चाहिए. Personally. आपका कॉन्सेप्ट, आपका लॉजिक, आपका दिमाग टेस्ट करना चाहिए. एंड इंस्टीट्यूट इज मूविंग टुवर्ड्स दैट. अगेन लास्ट ईयर आई हैड सेड दैट. लास्ट ईयर सॉरी, अगेन बोल रहा हूँ, जैसे ई टू द पावर आर, पीवी फैक्टर्स एंड ऑल, वो सब देने लग गया इंस्टीट्यूट. वो सब में टाइम पास अभी नहीं करता है. 3 साल पहले वो पोर्टफोलियो के सम्स में मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन के सम्स दे देता था, विच यूज्ड टू बी वेरी कैलकुलेशन इंटेंसिव. Nowadays they do not prefer giving those kind of sums because they want to test your analytical ability, your understanding capability, your understanding. So अपना अंडरस्टैंडिंग आपको इंप्रूव करना पड़ेगा. तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ऐसा कुछ है नहीं. क्लबिंग 2 टॉपिक्स, यस, इंटरनेशनल वाला पार्ट के साथ, फॉरेक्स वाला पार्ट के साथ क्लबिंग थोड़ा ज्यादा हो रहा है. बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट कैपिटल बजटिंग, यूर क्लबिंग इट विद फॉरेक्स. यू आर टॉकिंग अबाउट डेरिवेटिव्स, इट इज अगेन क्लब विद फॉरेक्स. सो मोस्ट ऑफ द केसेस वी आर ट्राइंग टू लुक इनटू लॉट ऑफ फॉरेक्स रिलेटेड स्टफ. डिविडेंड पॉलिसी, सिक्योरिटी एनालिसिस क्लब होगा ही होगा आपका, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते. योर डीडीएम मॉडल, गॉर्डन मॉडल एंड ऑल विद द डिविडेंड पॉलिसी एंड द वॉल्टर एंड उसका रिलेशन में कभी वर्क कर जाते हैं हम लोग. सो दोस थिंग्स विल बी देयर. you'll have to that is why I'm saying उस केस में आपका फॉर्मूला का अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? व्हेन लुकिंग एट दीज थिंग्स, जो 2 टॉपिक क्लब हो रहा है वहां पर आपका अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स एंड सब्जेक्ट्स, I would say people talk about कैसे अपना पढ़ाई प्लान करें, किस तरीके से अपना एग्जाम, how to structure the exam. Personally I would say theory और practical subject parallel रखिए. दिन में 2 सब्जेक्ट करिए. People want to do only 1 subject, 3 मत करिए please. It does not work. It just breaks the flow. You need 2-3 hours of concentration to get into the subject. आपको 1.5-2 घंटे तो लग जाते हैं to get into the mode of studying. So don't break that with more than 2 subjects. Maximum 2, 1 is also good enough. What I used to do was, and what I would recommend you guys to do is, अकाउंट्स चल रहा है तो अकाउंट्स के जैसे होल्डिंग करे तो होल्डिंग करिए पूरा खत्म. होल्डिंग खत्म हो जाएगा, अकाउंट छोड़ दीजिए क्योंकि वो कोई और टॉपिक से कनेक्टेड नहीं है. नाउ लेट्स से यू आर स्टार्टिंग ऑफ विद एसएफएम. अकाउंट्स के बाद पहले लॉ या ऑडिट कुछ उठाइए. या तो यू डू अकाउंट्स का होल्डिंग, देन आई एम स्टार्टिंग लॉ का डायरेक्टर, देन आई एम डूइंग लेट्स से आई पिक अप एसएफएम. सो एसएफएम का डेरिवेटिव्स फॉरेक्स एक साथ होगा. सिक्योरिटी एनालिसिस कर रहे हो तो डिविडेंड पॉलिसी उसके साथ होगा. सो सी द रिलेटेड चैप्टर्स एंड डू दैट वे. So 1 practical, 1 theory, 1 practical, 1 theory. And at times I used to get irritated. तो उस समय मेरा 6-7 घंटा प्रैक्टिकल चल रहा था, 3-4 घंटा थियोरी का पूरा दिन में कर लेता था. बिकॉज पूरा डायरेक्टर्स 1 हफ्ता करना इज नॉट पॉसिबल फॉर मी. दैट्स माई वे. सो 5-6 आवर्स ऑफ अकाउंट्स चल रहे हैं, शाम को 2-3 घंटे डायरेक्टर्स चल रहा है, फिर 5-6 आवर्स ऑफ अकाउंट्स चलेगा, वापस फिर 2-3 घंटे डायरेक्टर्स चलेगा. तो 2 सब्जेक्ट्स, 1 theory, 1 practical parallel. एंड प्लीज कभी भी 2 टैक्स साथ में मत रखिए. डू नॉट कीप डीटी एंड आईडीटी टुगेदर. इट विल जस्ट मेस इट अप. सो डोंट डू दैट. इसका के लिए डू नॉट गिव इसका 1 वीक. इसका कोई एक दिन में 4 चैप्टर किया, या एक चैप्टर एवरीडे का ले लो, या बीच में जब दोनों सब्जेक्ट से इरिटेशन हो रहा है, लॉ से अकाउंट से, इसका का 3 चैप्टर उठाया, 1.5-2 घंटे में 3 चैप्टर खत्म किए एंड रफली करके उसको छोड़ दिया. फिर 1 हफ्ते बाद में वापस 2-3 चैप्टर उठा लिया. सो इसका में फ्रीक्वेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट, बाकी चीजों में डेप्थ इज मोर इंपॉर्टेंट. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एसएफएम अकाउंट्स एंड कॉस्ट, योर डेप्थ ऑफ स्टडीइंग इज मोर इंपॉर्टेंट. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इसका, द रेपिटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट. लाइक द सेम थिंग आई वुड से विद रिस्पेक्ट टू सीक्वेंस में एक और चीज, अलाइड लॉ आई यूज्ड टू कीप इट एट द एंड. ऑडिट का जो स्टैंडर्ड्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स आई यूज्ड टू कीप इट एट द एंड. द बिगर टॉपिक्स, अकाउंट्स एंड डीटी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट सब्जेक्ट्स दैट यू हैव. सो उसको मैनेज करना इज डिफिकल्ट. टू ट्राई टू पुश दैट अप. एंड आपको लगेगा कि मेरा 90% हर सब्जेक्ट में खत्म हो गया है, वो लास्ट का 10% में बहुत टाइम लगता है. वो जो फिनिशिंग वाला रह जाता है ना कि इधर थोड़ा बाकी, इधर थोड़ा बाकी, इधर थोड़ा बाकी है, वो थोड़ा थोड़ा इज ह्यूज. आई एम टेलिंग यू.
यू विल नेवर बी एबल टू कंप्लीट पूरा का पूरा अपना रूटीन के हिसाब से सिलेबस खत्म नहीं होगा। तो एक 2 हफ्ते का वो बफर बीच में रखिए कि आई एम टारगेटिंग टू कंप्लीट इन मार्च, मतलब आई कंप्लीट इन अप्रैल सेकंड वीक और फर्स्ट वीक, एंड दोज स्मॉल पोर्शंस विल बी लेफ्ट। रिवीजन चालू कर दीजिए अगर वो स्मॉल पोर्शन लेफ्ट है तो। स्मॉल पोर्शन लेफ्ट दिन में 2 घंटा करके देंगे, बाकी 8 घंटा रिवीजन चालू इन अप्रैल। यू कैनॉट अफोर्ड टू नॉट रिवाइज, इट्स इम्पॉसिबल। मतलब आपको लगेगा कि नहीं हमको तो सिलेबस ही 15 अप्रैल तक खत्म करना है, तो जो पढ़ा है वो भी बर्बाद हो जाएगा। सो रिवीजन इज utmost important if you're not revising. I mean, my way was study the content very very well for once. एक रिवीजन एग्जाम के पहले, दैट इज अप्रैल फॉर माई मे एग्जाम, एंड देन एग्जाम के पहले 1.5 दिन में वापस रिवाइज। Solving questions के लिए now when I'm studying accounts, I'm solving the questions side by side. With respect to audit, practice manuals seem to be very important. So along with audit का पढ़ाई I was doing questions. I personally never do कि practice करूँ questions उसके बाद में एग्जाम दूँ या mock paper लूँ। मेरा स्टडी का तरीका कभी भी ऐसा नहीं रहा है। मेरा फोकस has always been the content has to be very very thorough. मेरा अंडरस्टैंडिंग has to be very important. कोई बोले तो मैं फॉर्मूला प्रूव कर दूँ। एंड SFM सिंस मेरा CFA का कुछ लेवल्स किया हुआ था, एंड आई वाज वेरी कंफर्टेबल। आई जस्ट लव्ड फाइनेंस एंड आई लव फाइनेंस, आई जस्ट एंजॉय डूइंग इट। आई रिमेंबर पोर्टफोलियो का एक बीटा का फॉर्मूला मैं डिराइव करा था सुबह एग्जाम के पहले, बिकॉज मेरे को बाकी चीज़ आई वाज प्रीटी कंफर्टेबल विथ। सो SFM के केस में आई डिड नॉट हैव टू डू एनीथिंग एज सच, एंड आई वाज बिजी। मेरे को एक फॉर्मूला डिराइव नहीं हो रहा, तो आई हैव दैट प्रॉब्लम दैट डिराइव कैसे नहीं हो रहा है, तो एग्जाम तक आई कांट वेट, सो आई वाज डिराइविंग दैट फॉर्मूला। सो that is a different way of doing it. I can't practice and do. That has been my way. अगर आपको लगता है कि नहीं आपको प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा जरूरत है, तो प्लीज प्रैक्टिस। तो वो उसको वैसे ही स्ट्रक्चर करना होगा। जब अकाउंट्स करे तो अकाउंट्स का प्रैक्टिस चल रहा है होल्डिंग का, देन यू आर डूइंग लॉ, सो दैट हैज टू बी फ्रॉम द वे यू डू इट। So sequence of chapters and subject, theory practical, and also just routine। सुबह 7 बजे उठेंगे, 8 बजे करेंगे, 9 बजे करेंगे, रूटीन डज नॉट वर्क। ऑलवेज हैव योर चंक्स की पूरा हफ्ता का डिवाइड करके रखिए। इस हफ्ता में सपोज आई हैव 4 months, 1 month इज आउट फॉर रिविजन, 3 months बचा है। 3 months में मेरा अगर 8 सब्जेक्ट है, तो 12 weeks में 8 सब्जेक्ट मीन्स आई हैव अ वीक एंड हाफ पर सब्जेक्ट। उसमें ऑडिट और इसका कोई एक हफ्ता देने का होगा, एंड अकाउंट्स और DT एंड SFM को प्रॉब्ली 2 हफ्ता करना होगा। सो वो 2 weeks में अगर अकाउंट्स खत्म करना है, that means how much time you have. So within 1 week I need to complete half of one accounts. Suppose I'm doing 2 subjects parallelly, तो हर हफ्ते let's say 1/4 of accounts खत्म होना चाहिए and half of law खत्म होना चाहिए। तो चंक वैसे रूटीन देखिए कि उतना हो रहा है कि नहीं। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक कि मेरा 9 बजे तक, मेरा ये हफ्ता ये खत्म करना था, 9 बजे तक खत्म हुआ तो रात को मूवी, नहीं हुआ तो घर पे पढ़ना पड़ेगा। सो दैट गिव्स यू एन इंसेंटिव टू एक्चुअली कंप्लीट द होल कंटेंट, सो दैट यू कैन एक्चुअली गो आउट एंड वॉच अ मूवी। इफ यू आर स्लीपिंग फॉर 8 hours, इफ यू आर एक्चुअली स्टडिंग फॉर 10 hours इन अ डे, यू हैव 6 hours लेफ्ट। 2 मूवी हो सकता है पूरा दिन का, राइट? जेन्युइनली 8 घंटा सो रहे हो, 10 घंटा पढ़ रहे हो कॉन्सेंट्रेट करके, 6 घंटे अभी भी बाकी है। एंड मेरा होता था हाफ डे में खत्म हुआ तो फ्रेंड्स का एक एपिसोड आई सी, अदरवाइज आई नॉट। सो आई हैड माई चंक कि मेरे को एक हफ्ते में खत्म करना, तो यार 4 दिन में तो होल्डिंग करना होगा। इफ आई वांट टू कंप्लीट 1 वीक में इतना पोर्शन, तो 4 दिन का होल्डिंग है मेरा। मतलब आज मेरे को अगर 100 सम्स है तो 25-30 सम्स उतना लेवल तक आगे लेके जाना है। वो खत्म होगा तो आई वॉच, नहीं होगा तो घर पे बैठो। So give yourself that incentive and try to cover it. It will be very annoying. It will be one of the most frustrating times of your life, I'm telling you. And it's going to be very irritating. But you'll have to get through it. And don't give up. March end में आकर के या April beginning में आकर के कि मेरे से तो नहीं हो रहा है, मेरा सिलेबस नहीं हो रहा है, मेरे से हो रहा नहीं है, गिव अप मत करना। April end में जाकर रिवाइज याद करोगे कि यार उस समय 2 हफ्ता वेस्ट नहीं किए होते ना, तो आज निकालने वाला सिचुएशन होता। Trust me, seeing a lot of friends of mine in the same situation, good number of friends, good number of students, both friends and students both, and I've recently given my exam. 2013 was not very long back, so I know how it is, and I'm still studying. I still have another exam in March, so it's an ongoing process. You have to like what you're doing. उसको गाली दे करके पढ़ोगे तो नहीं होगा क्लियर। उसको शांति से उसको एक्सेप्ट करके पढ़ो। सीए बनना है, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मतलब आई डोंट लाइक सी, आई डोंट वांट टू डू, व्हाई डिड आई साइन अप फॉर सी। अपने कजन्स को भी बोल रहे मत करो, खुद कर रहे हो, जबकि डजंट मेक सेंस। आई सी दैट, आई मीन स्टूडेंट्स का भैया सीए तो नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मेरा कजन लोग बोल रहे हैं उसका हो रहा नहीं है 4 बार से। तो कैट भी लोग देते हैं, उसमें 2 लाख लोग देंगे, उसमें से 4000 सीट्स है टॉप 10 कॉलेजेस में, तो कैट भी मत दीजिए फिर। यहाँ पे तो परसेंटेज बहुत अच्छा है उसके हिसाब से। कंपेयर टू कैट, MBA एग्जामिनेशंस, 4000 seats out of about 1.5 to 1.7 lakh students giving the examination. We have a very good pass percentage that way, and especially with the inter exams का results this year in 2016 November. So you cannot be saying all those things. So sequence and chapters का subject, and दूसरा वो relation बैठा के देखिए, dividend security साथ में, dividend ये derivatives forex साथ में होगा, and
मर्जर्स आर सेपरेट, पोर्टफोलियोज आर सेपरेट वन. सो उस तरीके से यू हैव टू वर्क इट आउट कि कौन कौन से साथ में. इनफैक्ट जब आप सिक्योरिटी एनालिसिस करोगे तो वो जो मनी मार्केट यील्ड वाला वो ट्रेजरी बिल कमर्शियल पेपर का जो है वो भी उसके साथ करना चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल सिक्योरिटी एनालिसिस, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म. आई विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स एसएफएम में. फाइंडिंग द सोल्यूशन के लिए मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता था. आई एम टेलिंग यू कि कोई सम है उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, सपोज समझ में नहीं आ रहा है. सम में ना कुछ एक सेंटेंस लेकर के गूगल करिए, मिल जाता है. या तो कोई फॉरेन ऑथर का बुक में मिल जाएगा या फिर इंस्टीट्यूट का भी देखिए, प्रैक्टिस मटेरियल, इंस्टीट्यूट मटेरियल, सारा चीज ऑनलाइन लगा हुआ है. तो कोई सम अगर नहीं मिलता है कभी कभी बहुत इरिटेशन होता है, यार मिल रहा नहीं सोल्यूशन, कहाँ है, किसको पूछे. सम को टाइप करिए, थोड़ा सा एक लाइन को ऐसा उठा करके टाइप करिए विच इज लाइक अ लिटिल यूनिक, लाइक व्हाट इज द डिविडेंड टाइप करेंगे तो हजारों सम्स में हो सकता है वो लाइन. So pick out a line which is very unique to the question. You'll generally find the solution online. It's generally there. Google Books वगैरह में मिल जाता है. So I don't know. Just a tip. Selective study का कोई scope नहीं है. Institute में ना, अब institute का material में, again with all due respect to the institute, there are quite a few questions. There are quite a few questions which has got an incorrect solution. Now what happens is, मेरे हिसाब से incorrect solution याद करके बाकी पेपर को स्क्रू अप करने से तो बेटर है, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस के लिए भी आपका फिर पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे. उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो आप प्लीज अच्छे से अपना प्रिपेयर करिए. वट एवर इज राइट यू डू इट योर वे. एंड अगर एक दो क्वेश्चन उस प्रोसेस में रॉन्ग हो भी जाता है आपका तो होने दीजिए. मतलब गलत चीज पढ़ के एक क्वेश्चन के कारण आप गलत सोल्यूशन याद कर रहे हो, एंड बाकी भी जो अगर क्वेश्चन आएंगे तो उसमें भी गलती कर दोगे ना आप सेम. सो फॉर दैट 4 or 5 particular wrong solutions, why learn the wrong thing? So I never recommend students to learn the wrong thing. But there are a couple of places wherein it's a little weird, like that risk index thing I told you. उस तरीके का 5-7 आपका हर एक चैप्टर में एक दो ऐसा रहेगा. Whatever you can remember, मार्क करके याद कर लीजिए. नहीं रिमेंबर कर सकते छोड़ दीजिए. That is what I would say. With respect to institute material, most of your questions, 70-80% of the chunk of the questions of all the papers are from the institute material. DT के लिए कमेंट नहीं करूंगा, IDT का एक पार्ट के लिए कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि वो एवरी ईयर एवर चेंजिंग हो जा रहा है. And cost में there are new kind of questions coming in because cost is very universal. So you can copy questions from बाकी authors. So that is why you get a very variety of questions. I know it sounds a little bad when I'm saying, you can copy easily and that's why people change. But you can copy questions easily. That is why cost में, SFM में आपका changes आएगा. Accounts में आप देखोगे institute material से 80% chunk रहेगा ही रहेगा. So institute material जब इतना important है, तो why not concentrate a little bit on the institute material? So my focus is always there कि institute material का आपका practice manual, institute mat, इंस्टीमैट में ऑल्दो ज्यादा नहीं होता, बट पीएम और लास्ट 2-3 टर्म का आरटीपी तो एटलीस्ट आपका होना चाहिए. एंड व्हेन आई एम सेइंग दैट, एट द सेम टाइम आप अपना जो भी क्लासेस का जो भी टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं आप वो पढ़ लीजिए. वन सपोज डिविडेंड खत्म किया तो इमीडिएटली प्रैक्टिस मैनुअल का डिविडेंड फ्लिप थ्रू कर लो, आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट सारा कवर्ड है. कुछ अगर नहीं कवर्ड है उसको टिक करके रख लीजिए. सो द प्रैक्टिस मैनुअल, इंस्टीट्यूट मटेरियल ऑल शुड बी कवर्ड अकॉर्डिंग टू मी. हाउ टू कंप्लीट द पेपर, लेंथी क्वेश्चंस के लिए स्पीड थोड़ा बढ़ाना होगा. माई स्पीड इज गुड, सो थैंकफुली आई डिड नॉट हैव दैट इशू. बट नॉट ओनली द स्पीड ऑफ राइटिंग बट ऑल्सो द स्पीड ऑफ थिंकिंग हैज टू गो अप. आपका स्पीड ऑफ थिंकिंग की क्वेश्चन पढ़ो, उसको एनालाइज करो, उसको समझो, इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब क्वेश्चन पेपर में जनरली लिखना अलाउड नहीं होता है. सो व्हाट आई पर्सनली प्रेफर वुड कैन रेकमेंड यू, आई डोंट नो, यू हैव टू चेक विद योर इंस्टीट्यूट का रूल्स एंड रेगुलेशंस, जस्ट डू दैट. बट मेरे हिसाब से अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर के ऊपर नाम लिख देते हैं, इसका मतलब आपका चीटिंग का इंटेंशन नहीं है. यू डोंट वांट टू पास योर क्वेश्चन पेपर्स, दैट इज वन. और कुछ नहीं भी तो एटलीस्ट सर्कल्स तो कर सकते हो वैल्यूज को, कि पूरा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़े. टैक्स रेट 40%, वो 40% सर्कल कर दिया, टैक्स रेट 40% अंडरलाइन कर दिया. सो यू अंडरलाइन 4-5 वर्ड्स. तो उससे क्या होता है ना, इट बिकम्स ईजी टू स्ट्राइक कि कौन सा चीज कहाँ लिखा हुआ है. तो क्वेश्चन पढ़ने का टाइम भी आपको कम करना पड़ेगा. योर रीडिंग स्पीड हैज टू गो अप. क्वेश्चन पढ़ो, कॉम्प्रिहेंड करो और आंसर लिखना चालू करो. क्वेश्चन को बैठ करके घूरो मत. मतलब आर दिया है, D1 दिया है, P0 दिया है, तो एटलीस्ट उसका जी निकालो, मतलब 2-3 कुछ निकालना चालू करो, समझ में आएगा. You know what is the next step. You'll at least start realizing, at least something will be done. You understanding? So don't gaze at the question, don't just look at the question. I see people यार कुछ नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा है. And ये शुरू का पेपर का फर्स्ट 5-10 मिनट्स ये पैनिक रहता है, लास्ट आवर एंड हाफ में नहीं रहता है, बिकॉज तब आप फ्लो में आ गए, तब आप मूड में आ गए एकदम पढ़ाई, मतलब वो एग्जाम पेपर देने का. वो शुरू का 10 मिनट यार ये भी नहीं हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी नहीं हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. इफ यू स्किप थ्रू 2 क्वेश्चंस, आपको करने तो 5 है ही out of the 6 optional that you get. You understanding? So you can't skip 3 questions, right? So जो भी थोड़ा सा भी plausible लगता है चालू करो उसको जल्दी से. Don't waste your time. Lengthy questions रहेगा, you'll have to attempt, उसमें कुछ है नहीं. वो first 20 marks is gonna be a problem. वो थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है, तो बाकी में आपको बढ़ाना, मतलब वो बढ़ाना पड़ेगा. लास्ट 1 आवर जैसा देते हो पेपर, वैसा 3 घंटे में देना पड़ेगा. एंड स्पेशली अकाउंट्स एंड एसएफएम पेपर के लिए, इन पर्टिकुलर अकाउंट्स, क्योंकि अकाउंट्स पहला पेपर है
उसमें ना वो स्पीड आने में टाइम लगता है, क्योंकि 1 महीना से बैठे बैठे एकदम you're like a bean bag sitting at home for 1 month, and you don't want to write. It's very difficult to start writing because you've not written for one month, and especially last 1 month you're revising, so you're not even practicing questions, you're not even writing anything. So suddenly after 1 month I have to start writing at a speed. It becomes difficult. It is normal. So keep those things in mind. There is no shortcut to clearing CA examination. There is no shortcut. There is no selective study. There is nothing at all. It requires intelligence levels is ज़्यादा, discipline and perseverance is more important. I'm genuinely telling you, intelligence level से बहुत ज़्यादा requirement है आपका discipline का and not giving up. That is more important than actually just the intellect level. बिकॉज डीटी में क्या इंटेलिजेंस लगाओगे, हाँ वो 2 लॉ को जोड़ने में इंटेलिजेंस लगा लोगे, बट लॉ तो याद होना पड़ेगा ना, और इतना सारा लॉ है, मतलब कहाँ से भर के दिए समझ में नहीं आता है. बट IDT, आई मीन एक्साइज, आई रिमेंबर एग्जाम के टाइम रिवाइज करा था, एक्साइज टुक मी द होल डे एंड द अदर मॉर्निंग आई हैड टू रिवाइज द होल ऑफ सर्विस टैक्स एंड कस्टम. वो 4th पोर्शन जो अभी ऐड हुआ है वो इंटरनेशनल वाला पोर्शन, दैट वाज नॉट देयर व्हेन आई गेव माय एग्जाम FTP, so that was not there, and I try to stay away from taxation. I don't have this phobia from tax. So you'll have to recognize that. एक और चीज जो कॉस्ट अकाउंट्स एंड SFM पेपर के लिए व्हाट आई ऑलवेज रेकमेंड, एक लूज शीट बना के रखिए और उसको अपना तीनों बुक में डाल के रखिए. जब भी कॉस्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी गलती हो रहा है उसको नोट करके रखिए, दैट डू नॉट कंफ्यूज दिस विद दिस. और ये वाला जो भी गलती कर रहे हो, whatever mistake you're making on a regular basis, you're always confusing ROE with ER suppose. So don't confuse ROE with ER. तो ऐसे 15-20 मिस्टेक्स होंगे ना एग्जाम के पहले दिन, जब वो पढ़ोगे ना लिस्ट, तो एग्जाम में कॉन्शियसली याद रहेगा कि ये गलती मेरे को नहीं करना, आई डू दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस. देन यू विल अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट सपोज टू बी मेकिंग दोज मिस्टेक. कॉस्ट में इन पर्टिकुलर होता था, या कुछ भी छोटा पॉइंट्स होता था. लाइक एक क्वेश्चन है सिक्योरिटी एनालिसिस का, विच हैज द श्रीधर आचार्य फॉर्मूला यूज करना पड़ता है उसमें, -b + -√/b² - 4ac / 2a. इन ऑर्डर टू बैक कैलकुलेट, वो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए आपको श्रीधर यूज करना है. तो वो जो ट्रिक्स है ना, वो ट्रिक्स अलग से लिख के रखो. इफ आई नो द ट्रिक विदाउट लुकिंग एट द होल सम, मेरा वो सम हो जाएगा ना. एक और क्वेश्चन था, उसमें RE को बैक कैलकुलेट करना है, उसमें आपको IRR वाला इंटरपोलेशन लगाना पड़ेगा, इंटरपोलेशन जिससे आप IRR निकालते हैं. तो वो वाला चीज आपको दिमाग में रखना. सो वो सम आपका 2.5 पेज का सोल्यूशन है प्रैक्टिस मैनुअल में. इफ यू वांट टू रिवाइज दैट बिफोर द एग्जाम, गुड लक, यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू रिवाइज इवन 5 चैप्टर्स. बट द मोमेंट यू राइट IRR इंटरपोलेशन यूज करो, कैलकुलेट RE यूजिंग इंटरपोलेशन, वो सम का सोल्यूशन हो गया आपका रिवाइज. The moment you just write that use interpolation to compute RE beside the question, वो आपका सम सॉल्व है ना, वो रिवाइज हो गया ना एग्जाम टाइम पे. इंटरपोलेशन तो कर ही लेंगे एग्जाम में, और बहुत ही गंदे तरीके से सॉल्व किया हुआ है. आई एम सॉरी बट इट्स वेरी बैड वे दे हैव गिवन द सॉल्यूशन. यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो दैट इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर दैट 1.5 days के लिए. यू हैव टू, यू डोंट हैव एन ऑप्शन. और जो 1.5 दिन में रिवाइज होगा वो एग्जाम में कर पाओगे, जो 1.5 दिन में रिवाइज नहीं होगा वो एग्जाम में नहीं लिख पाओगे. इन ऑल प्रोबेबिलिटी मोस्ट ऑफ द स्टफ इज गोना गो दैट वे. So retention is that apart from ISCA, you need to do it more number of times. That is more important. Try to do professional ethics and standards of auditing and allied laws. These kind of very exceptionally theoretical stuff a little towards the end. मतलब जब syllabus चालू कर रहे हो जनवरी में, फरवरी में, try to start with more of the जो retain जल्दी easily होगा उससे चालू करो, and जो कमती retain होगा उसको towards the end रखो. बाकी theory practical करो. 2 सब्जेक्ट से ज्यादा एक बार में करो मत. Even if you want to keep 1 subject a day, you keep that. रिवाइज करना पड़ेगा एक बार, complete the whole content very thoroughly, very good understanding के साथ. Revise it in a month's time period. Whatever you can extend or shorten it based on your personal preparation and all. And exam में 1.5 दिन तो रिवाइज करना ही पड़ेगा. जो 1.5 दिन में रिवाइज करेंगे वो एग्जाम में कर पाएंगे. So revise the whole content in a day and a half and attempt the whole 100-mark paper and you will be through. इतने लोग का एग्जाम क्लियर होता है यार, आप लोग का क्यों नहीं होगा? मतलब फर्स्ट टाइम दे रहे हो, सेकंड टाइम दे रहे हो, डजंट मैटर, ये वाला टाइम में क्लियर करना है. एंड दैट डेस्परेशन हैज टू बी देयर. इफ यू आर नॉट डेस्परेट टू क्लियर द एग्जाम, यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर CA फाइनल. आई एम टेलिंग यू, क्योंकि CA फाइनल में दैट आई कांट सिट एट होम फॉर अनदर 6 months. आई कांट वेस्ट माय 6 months. एंड 6 महीना डिले हो रहा है. सोचो 6 महीना का सैलरी जा रहा है. Even on an average, if you're thinking of 7-8 lakh rupees a month, rupees per annum, you're losing 4 lakh rupees just by delaying your exam by 6 months. 4 लाख का नुकसान कर रहे हो एक अटेम्प्ट अगर नुकसान कर रहे हो तो. थिंक ऑफ इट फ्रॉम दैट वे, फ्रॉम अ वेरी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू. जो अंडरस्टैंडिंग, इट्स नॉट द 2000 bucks का एग्जाम फीस एंड 6 months that you're sitting at home. You're losing out on 4-5 lakh rupees. You do your exam, अभी एग्जाम क्लियर होगा तो जॉब पे जाओगे ना. ऑन एन एवरेज द बेयर मिनिमम आई एम सेइंग. एंड अगर बोलते हो कि 8 लाख रुपए का तो जॉब CA को मिलता नहीं है,
तो उसमें फिर आप लोग को एक्सेल शॉर्टकट्स नहीं आते, आप कंप्यूटर यूज नहीं कर सकते हो ठीक से, आप इंग्लिश बोल नहीं सकते हो, बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते हो. I was taking interview for one of the organizations, so CAs को hire कर रहे थे, and the first question I was asking to everybody was which is the last book you've read. एक बंदे ने बोला था कि बुक पढ़ा है, उसने बोला था बंगाली बुक पढ़ा है, सो इट डजंट मैटर आप बंगाली, हिंदी, मारवाड़ी कौन सा बुक पढ़ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, बट एटलीस्ट यू हैव अ रीडिंग हैबिट. इफ यू डोंट नो व्हाट्स अराउंड विद द पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, देन डोंट से कि मेरे को 4 लाख का सैलरी कैसे दे रहे हैं, हम सीए कर लिया है. Then don't comment on that. If you can't even have those basic shortcuts on Excel. I see articleships के टाइम पे articles and all जो यूज कर Excel में, मतलब इतने छोटे छोटे ट्रिक्स होते नहीं पता होते हैं. Excel पे कोई नंबर टाइप करना, कंट्रोल शिफ्ट के साथ 1 2 3 4 5 टाइप करना, देखना कंट्रोल शिफ्ट 1 करोगे नंबर आ जाएगा, 2 करोगे टाइम फॉर्मेट, 3 इज डेट फॉर्मेट, 4 इज करेंसी फॉर्मेट, 5 इज परसेंटेज फॉर्मेट, 6 इज एक्सपोनेंशियल, वो नहीं होता है 10 प्लस ई वाला फॉर्मेट ऑफ नंबर, वो आ जाएगा. एंड कंट्रोल शिफ्ट हाइफन करोगे नंबर एज इट इज आ जाएगा. कंट्रोल शिफ्ट 1 इज 2 डेसिमल प्लेस. फॉर्मेटिंग में लोग इतना टाइम वेस्ट करते हैं. बहुत बेसिक चीज है एक्सेल एंड ऑल का. पीपीटी बनाना नहीं आता है. इफ यू कांट मेक प्रेजेंटेशंस, इफ यू कांट प्रेजेंट योरसेल्फ, इफ यू कांट टॉक इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू डिमांड दैट काइंड ऑफ सैलरी? सो डोंट इवन क्रिब अबाउट कि इंस्टीट्यूट पास नहीं करे, वो भी छोड़ दीजिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए. एंड अगर इंस्टीट्यूट के बाद में जॉब नहीं मिल रहा तो उसमें भी अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए. यू हैव टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. You have to be well read about economics, about politics. So final के क्लास में मैं always I used to keep on telling these guys कि जैसे आपका एग्जाम खत्म हो रहा है, एग्जाम फाइनल के साथ साथ में रोज न्यूज़पेपर पढ़ना उठाना चालू कर लीजिए. 5 मिनट लगेगा. न्यूज इन शॉर्ट्स ऐप यूज करो, टाइम्स ऑफ इंडिया का बिजनेस पेज. आई एम नॉट आस्किंग यू टू रीड इकोनॉमिक टाइम्स और बिजनेस स्टैंडर्ड और समथिंग. TOI का बिजनेस पेज पढ़ना शुरू करिए एंड न्यूज इन शॉर्ट्स देखना शुरू करिए. इट इज हार्डली 2-3 मिनट्स का काम इन अ डे. पढ़ाई से इरिटेट हो रहे हैं, बीच में न्यूज एंड शॉर्ट्स देखो. इफ यू नॉट अपडेटेड अबाउट योर सराउंडिंग्स, इफ यू कांट आंसर योर क्वेश्चंस इन एन इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन का भी कोई पार्ट ही नहीं लिया. आई हैव सीन सो मेनी पीपल, पहला जीडी इज हैपनिंग सीए फाइनल के बाद में इंटरव्यू में. ग्रुप डिस्कशन में क्या पूछेगा? सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल टॉपिक के ऊपर में. यू विल नॉट बी एबल टू टॉक इफ यू डोंट हैव एनी कंटेंट. एंड पूरा 2 साल का न्यूज आप 1 महीना में प्रिपेयर नहीं कर सकते. उसके बाद में तो जीएमसीएस का अलग ही टाइम पास चालू हो जाता है. जीएमसीएस के बाद घूमना होता है एवरीडे, तो उसमें न्यूज़पेपर वगैरह कुछ दिखता नहीं है. So whatever it is, instead of complaining about a lot of things around, we need to do our work. Our homework needs to be done well, and we'll absolutely crack the exam. So have that approach. So देखिए कौन सा सब्जेक्ट में क्या है. Any questions if you have about how we are supposed to be going about the exams? If you have any question, tell me. Otherwise, we will start off with derivatives. After the November section examination, Right. after a week, I'll be starting with my SFM classes. I mean the SFM revision book. How to start off? Like after 3 months gap, I need to start off with the SFM revision once again. Gap, agreed. Now a lot of people have that gap because exam दे रहे हैं, फिर results का wait कर रहे हैं. Just in case it's not clear, so you get a 2-3 month gap. So starting में थोड़ा टाइम लगेगा. It'll take time to pull it off. Again वही बोल रहा हूँ कि जो पहली बार पढ़ा था ना, उस समय अगर शॉर्ट में वो नोट्स वगैरह बहुत अच्छे से बने हुए हैं ना, that you know पूरा एक पैराग्राफ का समरी 2 लाइन में लिखा हुआ है, then it becomes easier. So उसमें कोई you don't have an alternative. You'll have to, starting का पेस थोड़ा कम होगा, धीरे धीरे उसको पिकअप करना पड़ेगा. कोई ऑप्शन नहीं है. I know the time lag, the results, and then you get into the mode and then you get started. It's very annoying. I agree. I'm totally with you on that. But if we don't want that phase to come again in our life, we need to desperately study. You have to be desperate for this exam. वो desperation लाना होगा and you'll have to attempt it that way. 100 marks attempt करो. मतलब अच्छे से पढ़ाई करके attempt करेंगे ना तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता. मतलब even I have given inter exam, I have given final exam, और भी बहुत सारे एग्जाम दिए एक्चुअली. पढ़ाई अच्छा से करके रखेंगे तो प्रिपेयर अच्छे से करेंगे तो क्लियर हो जाएगा एग्जाम. ऐसा नहीं है कि नहीं होगा. हाँ कभी कभी लग आई हैव स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छा प्रिपेयर्ड, आई नो कि उनका क्लियर होना चाहिए था, नहीं हुआ है. कुछ होता है कभी, इट्स नॉट योर गुड डे, दैट डे यू जस्ट पैनिक्ड, और देयर इज अ स्टूडेंट, उसका एक एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम हुआ, सो शी पैनिक्ड दैट डे. शी वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड, शी पैनिक, वो नहीं लिख पाए, मतलब शी कुडंट थिंक राइट. तो होता है, दैट्स अ लेसन दैट यू आर लर्निंग, दैट्स इट. दैट्स अ बैड लक, उसका कुछ नहीं कर सकते. बट अदरवाइज अपने तरफ से थोड़ा, एंड वो लक भी, देयर इज दिस कोट I had posted on Insta also, the harder you work, the luckier you get. And I personally believe in that. Think, the harder you work, the luckier you get. So work on these things, 3 महीना का गैप हुआ वो तो पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है. And time short है.
So once the results are out and then you start preparing, the time is very short. It's very short. It's a panic mode. Just gets it started. It's a panic mode time. That एकदम बहुत अच्छा 12 घंटे का पढ़ाई करना है. And you know, one like a few productivity tips type का अगर आप बोलोगे, nobody is a night person. It is scientifically proven that अगर आपको रात को 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ना है, उसमें अच्छा पढ़ाई होता है. That is all rubbish. You need to start getting up early in the morning and start studying. Nobody is a night person. It is a very scientific fact. You need to get up on the same time every day. If you are getting up today at 7 o'clock, tomorrow at 11 o'clock, परसों 7 बजे उठोगे तो your body requires 3 more hours of sleep, 4 more hours of sleep. So you have to get up on the same time every day. So there are a lot of things. I read a lot of these kind of stuff, these kind of blogs and all. So getting up at the same time and trying to eat a little right and all those things also help. Scientifically, very scientifically. I'm not talking about any ritual type का कुछ नहीं बोल रहा हूँ, but एकदम बहुत ही logically getting up at the same time and productivity वगैरह high रखने के लिए ये सब चीज़ चाहिए. So concentration